کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں Yes, mighty God. جس کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں. تیرا کلام زندہ اور مؤثر ہے. تیرے کلام کے نازل ہونے سے ہم شفا پاتے ہیں, ہم برکت پاتے ہیں. تیرا کلام زندہ ہے اور تیرا کلام ہمیں قائم رکھتا ہے. ہم تیرے زندگی بخش کلام کے تیرا شکر کرتے ہیں. آج شام کے لیے اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں, تو جو ہم سب کو اپنے روح القدس کی رہنمائی میں اپنے حضور میں لے کر آیا ہے, تیرا شکر کرتے ہیں. اب تک کی گئی ساری پرستش کے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرے خادم کے تیرا شکر کرتے ہیں جن کے وسیلہ سے خدا تو آج ہم سب کی برکت, نجات, رہائی, مخلصی کے لیے ہم سے کلام کرنے والے ہیں. اے خدا ہم تیرے خادم پہ تیرے الہی مکاشفات مانگتے ہیں. تیرے پاک روح کی رہنمائی تیرے خادم کو حاصل رہے, اور جب تک اے خدا وہ تیرے مذہب پر کھڑے ہو کر ہماری نجات و شفا کے لیے تیرے کلام کی خدمت کرتے ہیں, اے خدا تیرا روح ان کی رہنمائی فرمائے. اور آج اے خدا ہم تیرے کلام سے ڈھیروں برکت پا جائیں, ڈھیروں برکت پا جائیں, اور منت کرتے ہیں یسوع کے نام سے ابلیس کی وہ ساری چال بازیاں جو ہمارے دلوں سے کلام کو چرانا چاہتی ہیں یسوع کے نام سے جاتے ہیں. اور اے خدا تیرے روح کی برکت حضوری ہمارے زندگی میں ٹھہرے رہے. تیرے بیٹے یسوع کے بزرگ نام سے اے باپ یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. سو ہم کھڑے کھڑے خدا کے کلام کے لیے اور خدا کے خادم عالی جناب بشپ جوید الیاس صاحب کے لیے تالیاں بجائیں گے اور دعوت دیں گے. مسیح کے جلالی پیارے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج کی شام کے لیے خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ وقت دیا, سلامتی بخشی, اور میں خصوصاً تمام خدام کے لیے آپ سب کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں بڑے شاید عرصے کے بعد, اور میں اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں, اپنے لیے ایک برکت سمجھتا ہوں کہ جب خدا کے لوگ جو ہیں وہ مجھے بلاتے ہیں. اس کا حرکت یہ مطلب نہیں کہ میں زیادہ اچھا کلام سنا. ذرا بشپ صاحب ذرا فون شون ہو, ذرا آپ کریے, ذرا آپ کر دیں یا سائلنٹ کر دیں, ہاں جسے میں مرضی فلائٹ موڈ پہ کر دیں. آپشن ہے 3 آپ کے پاس. سمجھے آپ سفر کر رہے ہیں جہاز پہ, تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مجھے آپ سے زیادہ کلام آتا ہے. اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, نہ اس طرح کی کوئی بات ہے, بلکہ جتنے میرے بڑے قریبی دوست ہیں, ساتھی ہیں, وہ مجھے جانتے ہیں اور بڑے سالوں سے جانتے ہیں کہ اب اپنے منہ سے تو نہیں اچھا لگتا, لیکن آئی ایم ویری ہمبل پرسن. میری بات سمجھ گئے؟ تو یہ بھائی ابھی چند پہلے ابھی ریکارڈنگ نہ لگائیں, یہ میری پرسنل بات. کوئی گیل ایسوسیشن بنایا, کوئی سوترا بنایا, مجھے کسی سے کوئی غلط نہیں. آپ خدا کے لوگ ہیں, خدا کے خادم ہیں, اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہماری اس سے بھی بڑی ایک پہچان ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. ہلیلویا. ہماری اس سے زیادہ کیا پہچان ہو سکتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے دوست ہیں. ہم بلائے گئے اور خدا نے دنیا کے تمام کاموں سے ہمیں ایک عظیم کام دیا ہے. ہر کسی کو انجیل سنانے کے لیے, پھیلانے کے لیے نہیں بلایا گیا, میں اور آپ بلائے گئے ہیں. ہلیلویا. اس سے بڑی کیا پہچان ہو سکتی ہے کہ میں خدا کا, میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہوں. وہ ہمیں دوست کہتا ہے. تو اگر کوئی لگانا چاہتا ہے اپنی ذات تو لگائے, کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے, ایسی بات نہیں.
وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے بردر نے لا نہیں آئے ڈیوڈ بٹی صاحب، ان کو بٹی نہ کہیں تو وہ برم نہ. بشپ صاحب آتے مینو بھی تو بٹی کا شرٹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਰੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੱਟੀ ਹੋ ਗਏ. تو میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نا کہ ہماری پہچان یہ ہے کہ خدا نے ہمیں عظیم کام کے لیے بلایا، ہم اس کے شاگرد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے تمام کاموں سے بڑھ کر ہے، عظیم کام ہے انجیل پھیلانا. مجھے پتا ہے جب میں نے انجیل سنانا شروع کی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑا ایزی ہے، لیکن جو ہم پھیلا رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ ایزی کام ہے؟ کیوں بھائی ایزی ہے؟ ہیلو، میں نے نا کچھ انکریجمنٹ کے لیے باتیں کرنی ہیں، کلام تو ہم سنتے سناتے رہتے ہیں، چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جس کو ڈیوٹی نہیں نہ ملتی وہ پادری بن جاتا ہے، ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਪ ਬਣਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜੀ لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اگر میں بڑی ایمانداری سے بتاؤں نا تو میرے والد صاحب خدا کے خادم تھے، مجھے کہتے تھے خدا نے آپ کو انجیل کے لیے بلایا، تو میں کہتا مجھے تو خدا نے کبھی نہیں بلایا، اس لیے میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. میرے بیٹے کو سب لوگ جانتے ہیں، وہ ایجوکیٹڈ بندہ ہے، ابھی وہ ایم ڈے کر کے آیا. میں نے کبھی اس کو نہیں پریشرائز کیا تم خادم بنو. میں نے جب بھی دعا کی میں نے خدا تو بول اس سے کلام کر. تو جو دنیا کے لوگ ہیں جو اس مکاشفے کو نہیں جانتے، اس بات کو نہیں جانتے، ان کی نظر میں ہم حقیر جانے جاتے ہیں. شاید ہم اپنے عزیزوں کی نظر میں حقیر جانے، لیکن یاد رکھیے خدا کی نظر میں میرا اور آپ کا بڑا مقام ہے. ہاللیلویا، اس کے خاص لوگ ہیں ہم. آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھوائی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل. خداوند یسوع مسیح کی جو 17 باب میں دعا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے تھوڑا سا. جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ کھولی. 17واں باب ہے. 18ویں آیت سے ہم شروع کریں گے. 17 باب اس کی 18واں آیت. جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا. کس نے بھیجا؟ یسوع مسیح نے. اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں. میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائے. ہاللیلویا. تو یہ دیکھیں، یہ یسوع مسیح کی دعا ہے آسمانی باپ سے. جس طرح تو نے مجھے بھیجا، تو ہماری طرف اشارہ کر کے وہ کہتا ہے اب میں ان کو بھیجتا ہوں. تو ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا بلاوا جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے. ہاللیلویا. کس کی طرف سے ہے؟ ہم خدا کی طرف سے بلائے. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں. اور پھل کا مطلب آپ کسی بھی معنی میں لے سکتے ہیں، لیکن میری جو نظر میں پھل کا مطلب ہے شاگردیت، شاگرد سازی کا کام کیا جائے، یہ ہمارا پھل ہے.
जिस खादम की खिदमत के वसीला से लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके पास आते हैं, ये फल है। और क्या फल देना भाई? आप इसकी निशाबत तो बहुत सारी कर सकते हैं, तशरीह कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में हमारा फल ये है, फल लाओ। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों को हम खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने का वसीला बनाए। वो कितनी इज्जत के साथ आसमान की बादशाही में दाखिल किए जाएंगे, जिनके वसीला से बहुत सारे लोग मुकद्दस या रास्तबाज किए जाएंगे। जब जमीन पर एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर क्या होती है जी? खुशी होती है। क्या होती है? तो खुदा किन को इस्तेमाल करता है? खुदा आपको इस्तेमाल करता है। और मैंने इसका तर्जुमा पढ़ा के इंग्लिश में लिखा है, एक वर्ड लिखा है कि फरिश्ते जो हैं वो डांस करते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो ये फल जब खुदा की हजूर पेश होता है तो आसमान पर क्या होती है जी? अजीम खुशी होती है। तो यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं ना, तो मुझे बताया गया था कि 15-20 मिनट लेने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पादरी वाला हाथ ना ही गए थे। ठीक है, आगे जब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि बाप जिस तरह हम दोनों एक हैं, मैं चाहता हूं ये भी आपस में क्या हो जाए, एक। इस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि शायद पहले वक्त में इतनी यूनिटी की हमें ज़रूरत नहीं थी जितनी अब हमें यूनिटी की ज़रूरत है। हमें मुत्तहद रहना है। और ये बड़े छोटे का मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को ख़त्म कर। शागिर्दों ने एक दफ़ा ये मसला यीशु मसीह के सामने उठाया था, हम में से बड़ा कौन है जी? क्यों भाई, बड़ा कौन है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील देकर उनको समझाया कि बड़ा कौन है। जो अपने आप को क्या बनाएगा जी? खिदमत करेगा, छोटा बनाएगा, अमली तौर पे, जुबान से नहीं। नहीं मैं तो ਤੁਹਾਡਾ छोटा खादम आते, छोटा तो फिर काम भी छोटे वर्गे घर पे। मैं नाम नहीं मेंशन करता, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं कोयटे से। कोयटा से तो वो एक मीटिंग में थे, बड़े सीनियर पास्टर बैठे थे, तो उनको पादरी साहब जब कह के बुलाया गया तो उन्होंने कहा जाओ मैं नहीं दुआ करता। वो तुहानू तमीज ही नहीं आया, मैं डॉक्टर हाँ। मैं की है भाई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये भी एक हमारे लिए अलमिया है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम शागिर्द बनना नहीं चाहते। क्यों भी अलमिया है कि नहीं? हमें डिग्री ले लो, भावें जितों मर्जी ले लो। डॉक्टर हूँ, आप पढ़े हैं, पढ़ लिख के लें डिग्री, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर डॉक्टर नाम लेके ना भी बुलाया जाए तो कोई मसला नहीं। इससे बड़ी क्या बात है अगर मुझे कोई कहता है पादरी साहब, मैं फख्र महसूस करता हूँ जब मुझे पास्टर साहब लोग कहते हैं। हालेलुया। इससे बड़ी क्या बात है कि हम खुदा के खादम हैं। बाद औक़ात हमें बातें बुरी लगती हैं, लेकिन हम वही कुछ बयान करते हैं जो कुछ हम देखते हैं। पिछली दफ़ा मैं कराची में था तो जुमेरात की मीटिंग थी, अब भी आने वाली है, जब पाकिशाह होगी पाँव धोएंगे लोग। पादी साहब कहते घरों पैर जरा भाई धो धा के आया जे। मेरी बात समझ गए? ओ भाई उन्होंने धो के उन्हें तो तू कल बैठा थे। हम अपने आप को कहते खादम है, बहर बाकी खुदा ने हमें खादम होने के लिए बुलाया है और अजीम खिदमत खुदा ने हमें सौंपी है। हालेलुया। तो मैं बात कर रहा था कि खुदा ये चाहता है कि हमारी यूनिटी हो।
हमारा इत्तेहाद हो, मेल मिलाप हो। जब भी किसी से बातचीत करें, हमारे अल्फाज से, हमारे रवैये से पता चले कि वाकई हम खुदावंद के खादिम हैं, और किसी की पैंट पे, शर्ट पे, कोट पे, टाई पे ध्यान न दें। क्यों भाई? किसी की गाड़ी की तरफ ध्यान न दें। मेरे पास बहुत सारे सालों की गाड़ी है, बहुत सारे दोस्तों को पता ही नहीं कि इनके पास गाड़ी। आज चल गया पता। अच्छा, आज पता चले। दो नहीं, है। दो है। चल गया। अच्छा, दूसरी का पता चले। तो ये चीजें फजूल हैं। उसको दे दे जिसके पास नहीं है। ज्यादा मांगे, फिक्र ना करो। खुदा ने हमें देने की भी तौफीक दी है। हालेलुया। आमीन, आमीन, हमें ये मैं मसीह में फख्र करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे पर्सनली नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं, खुदा ने मुझे तोड़ा दिया, देने का भी दिया। और ये मेरा बीज है जो खुदा ने मुझे दिया। मैंने बीज बोया था। अब मेरा मजमून किसी तरफ और चला गया। मैं एक बात बताता हूँ आपको। बाइबल आप बेशक बंद कर दें, 5 मिनट लूँगा मैं आपसे। मैं रोजाना की बुनियाद पे बीज बोता हूँ, रोजाना की बुनियाद पे। सुबह दुआ करके मैं रोजाना की बुनियाद पे सबसे पहले, नाश्ते से पहले मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास बकाया क्या है, क्या बचेगा। अभी तो मेरा बेटा बड़ा हो गया, जब छोटे भी थे ना, तो मैं एक ही दफा कहता था, मकबूल साहब मुझे बड़ी देर से जानते, मैं कहता था आज मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे बच्चों को खुदा ने ब्लेस किया कि उन्होंने पता चल गया पैसे नहीं, दोबारा नहीं उन्होंने मांगे। लेकिन मैं रोजाना की बुनियाद पे कलाम सुनाते हुए आपको बता रहा हूँ, ये मेरी गवाही है कि मैं रोजाना की बुनियाद पे बीज बोता हूँ और शाम होने से पहले काटता हूँ। आमीन। हालेलुया। हमारे हाथ देने वाले हों, लेने वाले ना हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं इसमें। मेरे इतने अमीर दोस्त हैं अमेरिका में, पूरी दुनिया में हैं। आई नेवर आस्किंग टू एनीवन फॉर द मनी, दिस इज माई टेस्टिमनी। हालेलुया। मैंने कभी अपने दोस्तों से नहीं कहा मुझे पैसे दें, लेकिन मुझे उन लोगों ने भी पैसे दिए हैं जिनको मैं जिंदगी में नहीं कभी मिला। किसी को नहीं देते, वो भी आपको दे देते। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें खुदा की जात पे ट्रस्ट करना है। हम बुलाए गए, हम खुदा के खादिम हैं। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है कि हमारे हाथ में बाइबल मुकद्दस हो, अंजील का पैगाम हो और हमारे घर में रिज़्क की कमी आ जाए। नेवर, आई डोंट बिलीव इट। ये जज्बाती बातें नहीं है, ये एक हकीकत है। जिस घर में खुदा का कलाम हो, जो सुनाने वाले हों, कैसे ये हो सकता है कि वो मारे मारे फिरे? मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। जब ऐद का संदूक जो था ना, लिखा बैलों को ठोकर लगी, तो एक आदमी ने अच्छा काम किया था। उसने कहा यार इस पे खड़ा था ना, टेक लगाओ कहीं संदूक गाड़ी से नीचे ना गिर जाए। वो अच्छा काम था या बुरा काम था? काम तो अच्छा था, लेकिन वो बंदा मर गया। और लिखा कि जो ही वो बंदा मर गया, साथ ही लिखा दाऊद डर गया। बंदा मर गया और दाऊद, उसने कहा जिसका जी चाहता है वो ले जाए, मैं नहीं इसे लेके जाने वाला, आपने लेके जाना ले जाए। तो एक उबैद नाम का बंदा, जो जाति अदूम के नाम से वो पहचाना, उसका जिक्र आता है, लिखा वो अपने घर ले गया। और उसके बाद लिखा 3 महीने तक ऐद का संदूक उसके घर में रहा और खुदा ने उस संदूक के वसीला से बरकत। आमीन। किसके वसीला से? संदूक के वसीला। तो जब दाऊद को पता चला कि उस बंदे को खुदा ने बरकत दी है, तो उसने कहा मैं भी इस संदूक को लेके आता हूँ ताकि खुदा मुझे भी बरकत दे। आमीन। तो जब हम अंजील फैलाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, तो हम खुदा की जात पे ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को क्या करेगा जी?
पूरा करेगा। ये मेरा मजमून नहीं था, मैं कोई बात और करनी चाहता था, शायद ये खुदा की भी मर्जी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आई वांट टू एनकरेज यू ऑल ऑफ यू कि हम बुलाए गए हैं और हमारी ये पहचान है कि हम खुदा के खादम हैं। इससे बड़ी हमारी कोई पहचान नहीं। बड़ी इज्जत के साथ हम खुदावंद की बातचीत में दाखिल किए जाएंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो वेरी मच। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और खुदा का शुक्र बजा लाएं। आज के सारे वक्त के लिए खुदावंद ने हमें इकट्ठे होने का फजल बख्शा और खुदावंद का हाथ हमारी जिंदगियों पर है। और आइए अजीजों, इसके बाद हम एक खास सेशन में दाखिल होने को है और इन अयाम में खास तौर पर कलामे खुदा में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि यीशु ने खादिम के तौर पर अपने शागिर्दों के पांव को धोया। और पिछले दिनों हम ये सीख रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव से फख्र और घमंड की गर्द को धो डाला। आइए आज हम भी अपने आप को पेश करते हैं। मैं चाहूंगा ये हम थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं और अपने आप को हम पेश करते हैं। खुदावंद आज तू मुझे अपने लहू से धो दे, मेरे अंदर मोहब्बत यकानगत का रूह आए, मैं अपने से दूसरों को बेहतर समझूं। खुदावंद मुझे झुकना सिखा, खुदावंद मुझे मेरे भाई के लिए खुदा बरकत का बाइस बना दे। खुदा मैं दूसरों के लिए खुदावंद अफजल नमूना बनूं। होली स्पिरिट हमारे दिलों को छू ले। आइए अपने हाथों को हम सब उठाते हैं। चंगी तरह धो के मेरी कर सफाई, चंगी तरह धो के मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई, फजल ना मेरा। खुदावंद हम अपने आप को पेश करते हैं, तू हमें धो दे। हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं, हम अपनी सलीब उठा के तेरे पीछे आते हैं। खुदावंद तूने हमारे लिए सलीब उठाई, हम भी अपनी सलीब उठाते हैं, अपनी खुदी का इनकार करते हैं और तेरे नक्शे पांव पर हम चलते हैं। खुदा तू अपना हाथ हमारी जिंदगियों पर बढ़ाए, तेरे लहू की बाढ़ इस जगह पर लग जाए। ये हम थोड़ी देर दुआ में हालेलुया। ये पेश करें अपने आप को। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए नमूना ठहरे, एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद हम एक दूसरे का बाजू बने, हम एक दूसरे की तरक्की का वसीला बने, हम एक दूसरे को उठाने का बायस हो। ऐ खुदा तू हमें आज, ऐ खुदा जब इस यूनिटी के प्लेटफॉर्म पे लाया है तो ऐ खुदा हमारी मदद
जज्बात को खुदा बढ़ा, अपने खुदा लहू की बाढ़ लगा। तेरा लहू हमें छुए, तेरा लहू हमें छुए, तेरी हजूरी हमें छुए, हमें हम्बल होना सिखा, हमें ए खुदावंद हलीम होना सिखा, हम फिरौतन बने। ए खुदावंद हम सिर्फ जुबान के फिरौतन नहीं, हम दिल के फिरौतन हो, जैसे तूने फरमाया मैं दिल का फिरौतन हूँ। Glory to Jesus, हमें एक कर दे, हमें एक कर दे। आइए अपने साथ वाले का हाथ थाम के कहें, खुदा हमें एक कर दे, खुदा हमें एक कर दे, हमें एक कर दे। हम रूह में, हम सोच में, ए खुदा एक हो जाए। ए खुदा हम एक दूसरे के लिए बरकत का बारिश हो, तेरी हजूरी कुदरत सलामती हमारी जिंदगियों पे ठहरे। तो अपना हाथ बढ़ाए खुदा, और हमें खुदावंद तेरे नाम के जलाल के लिए खुदा की शान सब कुछ कर सके। हालेलुया, हालेलुया, रबा शद्दे मेरे मेरिया, ग्लोरी ग्लोरी। खुदा के खादम पास मकबूल साहब सामने आ जाए। हालेलुया। जब हम पाँव धोने के सेशन में जाते हैं तो हम खुदा की रहनुमाई और मदद को मांगेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा ही मिजाज जैसा मसीह यीशु का भी था। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह जैसा मिजाज ए खुदा अपने अंदर रखने वाले हो, हमारा रवैया ऐसा हो। ए खुदा हमारा मिजाज, हमारा खुदा यीशु जिंदगी के अंदर हर अमल तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के ए खुदा हम नक्शे कदम पर चलने वाले हो। ए खुदा हम यीशु मसीह के शागिर्द है। हालेलुया। ए खुदा खाकसारी, आजिज़ी और फुरतनी में बढ़ते चले जाए। खुदा तेरा ये कानून है, जो छोटा होगा तेरी बादशाही में वो बड़ा है। ए खुदा आसमानी बाप, हम अपने आप को इस खाक की तरह, इस मिट्टी की तरह अपने आप को बनाए जो रंगी जाती है पाँव के नीचे। ऐ खुदावन, इसी से खुदावन यीशु तू हमें सरकरू करता है। आसमान की बादशाही इसी खकसारी के अंदर है। ऐ खुदावन, हमारा ऐसा मिजाज हो कि हम एक दूसरे के पाँव धोने वाले हो। ऐ खुदा आसमानी जलाली अजीब खुदा, ऐ खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं ये बकाश हमारे ऊपर खुला है। ऐ खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं ये भेद हमारे ऊपर खुला है। और खुदा हमने ये जाना कि खाकसारी, हलीमी और आजिज़ी और फरोतनी ही आसमान की बादशाही में लेके जाती है। ऐ खुदा हम इसमें ऐ खुदा पैरा अमल रहे, ऐ खुदा तेरी मर्जी को पूरा करते रहे। खुदा आसमानी बाप, जितने हम तेरे हजूर झुके हुए हैं, हम खादम हैं तो सचमुच खादम रहे। खादम आला ना भले बल्कि खादमाना खिदमत में लगे रहे। खुदा ने यीशु जी, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आसमानी बाप, मुकम्मल तौर से रूह जान बदन को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को हम सारे मिलकर तेरे कंट्रोल में देते हैं, तेरे कब्जा में देते हैं। और ये सिर्फ आज नहीं, हमेशा के लिए ऐ खुदा तेरे हजूर तेरी मर्जी को पूरा करते रहे। खुदा हालेलुया। खुदा तूने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को भी इसी वास्ते वो नाम बख्शा जो तमाम नामों से आला है। इसी वास्ते जो पाँव धोता है, जो पाँव देता उसको वो नाम मिलता है जो सबसे आला है। ऐ खुदा आसमानी बाप, तेरा बेटा खुदा यीशु मसीह जो कुछ है वैसा ही अपने लोगों को बना देता है। ऐ खुदा उन्हें बादशाही के वारिस बनाता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हम खूबसूरत गीत अपने भाई के साथ सुनेंगे और ये आपकी तौबा की हालत की तरफ जाएगा। जब आप लोग शागिर्दियत के उस दर्जे पे जा रहे हैं, तशरीफ रखिए प्लीज, तो हम लोग इसमें शामिल होकर उस बरकत को हासिल करेंगे। और मेरी जो सीनियर्स हैं वो पाँव धोने की रस्म को अदा करेंगे, जो बुजुर्ग हैं। बाकी हम सब के पाँव धोएंगे। आपके पाँव धोना मेरे लिए और बुजुर्ग आदमों के लिए फख्र की बात है, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं बल्कि मसीह के कदमों की बात है। खुदा आपको बरकत दे। हम सब गीत गाएंगे प्लीज। रेवरेंड नसीर साहब जो बुजुर्ग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आए।
तशरीफ आए, सर आप आए प्लीज। और मैं जो हमारे सीनियर्स हैं, पहले आप सर आप तशरीफ आए, दोनों बैठिएगा आप, उसके बाद आप पाँव धोएंगे, पहले हम आपके पाँव धोएंगे प्लीज सर। सर प्लीज यू हैव अ सीट, सर आप आए, सर आप इनके पाँव धोएंगे, सर आए आप प्लीज। सब शागिर्दों के पाँव धोए जाएंगे, याद रखें। और मैं मसीह में आपके पाँव को हाथ लगाता हूँ क्योंकि मैं उसका नौकर हूँ। यूनुस साहब मावरत फरमाएंगे ताकि हम इस अजीम खिदमत को अपनी ज़िंदगी में अंजाम दे सकें। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों बाकी है, मगर मोहब्बत इनमें ये फसाद आज तुमने मेरा नाम लिया है, तुमने मुझे याद, आप सब कह सकते हैं तुमने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, खिदमत के लिए यीशु तूने मुझे मसा किया है, तूने मेरा नाम लिया है, तूने मुझे याद किया है, आरज़ू ये मेरी, ये फसा मैं आज खाऊं तुझसे पहले मैं इस शाम को बनाऊं तुझसे पहले
लहू प्यारा बन के वागी पे
میرے دائیں اور بائیں خدا کے میز پر اس کی خدمت کرنے کے لیے موجود ہیں. میں درخواست کرتا ہوں بشپ صاحب سے کہ وہ اجزاء کے لیے برکت چاہیں. خداوند قادر مطلق جلالی کرم خدا آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں. تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے جو میری اور پوری خلقت کے لیے بلدان ہے. اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور کہا کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا. پھر کھانے کے بعد اس نے پیالہ لیا اور کہا یہ شیرہ میرے خون میں تمہارے لیے بنیاد ہے،
जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। तेरे बहाए गए लहू के लिए, तेरे तोड़े गए बदन के लिए, जिसके वसीला से हमें निजात और शिफा हासिल है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद, हम ये रोटी नहीं बल्कि हम समझते ये तेरा बदन है, ये शीरा नहीं बल्कि तेरा खून है। जितने हम सब तेरे खून और बदन में शरीक हों, तेरी पाक मेज के सामने आए, हम सबको बरकत दे, रूहानी जिस्मानी तौर पर हम बरकत पाए, मसीह खुदावंद का वसीला से। खुदा कदूस, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी पाक मेज़ पर आने के लिए कि खुदाम जब हम थोड़ी देर तक खुदाम तेरी पाक मेज़ पर आते हैं, तेरे बेटे यीशु के खून और गोश्त में शरीक होते हैं, तो खुदाम यीशु मसीह के नाम से खुदाम ये बदन और खून हमें ये याद दिलाता है कि खुदाम तेरे बेटे यीशु ने हमारे लिए अपने बदन पर कोड़े खाए और हमारे लिए अपना खून बहाया। खुदा यीशु मसीह के नाम से हम इस बात का भी इजहार करते हैं कि खुदा उसने अपने आप को हमारे लिए पेश कर दिया ताकि हम खुदा हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएँ। मैं खुदा तेरी पाक मेज़ पर आने के लिए खुदा तेरे फजल को मांगता हूँ। जब खुदा हम सब खुदा तेरी पाक मेज़ पर आएँ तो खुदा तेरी बरकत को हासिल करें, यीशु के नाम से आमीन। जिस तरह खुदा यीशु मसीह को पकड़ाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को दी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। है मसीह तेरी सिताइश हो। इसी तरह उसने रोटी के बाद मैं का प्याला भी लिया और शुक्र किया और अपने शागिर्दों को दिया कि तुम मेरी यादगारी में इसे पियो, क्योंकि ये नए अहद में मेरा खून है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कि नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम्हें बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जाँचते तो सज़ा न पाते, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। मेहरबान बाप, मैं इन अज़ा के लिए तेरा शुक्र करता हूँ और देख तूने हम खादमों को अपनी मेज़ पर खिदमत करने का मौका दिया है। आसमानी बाप, मैं अपने खादम भाइयों के साथ मुतफिक होकर तमाम खादमीन के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, हाज़िर जमात के लिए तेरे हुज़ूर मिन्नत करता हूँ। अपने लोगों की ख़ताएँ, गुनाह, कसूर, बदियाँ और खुद परस्तियाँ माफ़ कर दे और रहम करके इन्हें ये तौफीक दे ताकि तेरी पाक मेज़ पर तेरे पाक बदन और खून में शामिल हों। इसके साथ तूने बड़ा वादा किया है, जो मेरा बदन खाता और मेरे खून में से पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसी की है, क्योंकि मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है और मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज़ है। और जो इसमें से पीता है और खाता है वो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करता है। कादिर और महीन खुदा, हमारी खताएँ, हमारे कसूर हमें मुआफ़ फरमा और अपनी पाक मेज़ पर अपने पाक बदन की ज़ियाफ़त में शामिल होने का बड़ा फजल बख्श दे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदा यीशु मसीह का बदन जो पहले तोड़ा गया, इसे ले और शुक्र करके खा। खुदा यीशु मसीह का बदन जो तेरे लिए तोड़ा गया, इसे ले और शुक्र करके खा ताकि तेरा बदन और उन दोनों बचाए जाएं। खुदा यीशु मसीह का खून जो तेरे लिए बहाया गया, इसे ले और शुक्र करके पी, क्योंकि जो उसका बदन खाता और उसका खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसी की है, क्योंकि उसका बदन फिल हकीकत खाने की चीज़ है और उसका खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। सर आप इधर आएं। ये जो उसके लिए मुझसे बता इसको साफ करना है, आप सब इसको लेंगे और सब खादिम किसी सिंगल आप एक तरतीब से आते जाएं, यूँ करके बैठते जाएं। आप अपनी रोटी उठाएंगे, दाने हाथ से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, उसको यूँ करेंगे, उसके बाद इसी तरतीब से एक एक करके आप इसमें शामिल होते जाएं।
हम दुआया हालत में रहेंगे। बेटा, आप कैमरे के इधर आ सकते हैं। जो आपके लिए तोड़ा गया, इसको खा, उसकी मौत की यादगारी में शरीक। हालेलुया। जो उसका बदन खाता है, उसके खून में से पीता है, हमेशा की जिंदगी उसी भाई की है। इसी का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, इसको खा, उसकी मौत की यादगारी में शरीक। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू हम पर रहम करता है। तूने अपने पाक बदन इसी का बदन जो आपके लिए और मौत में शामिल होने का फजल बख्शा। इसको खा, उसकी मौत की यादगारी में शरीक। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो आपकी निजात के लिए तोड़ा गया, इसको खा, उसकी मौत की यादगारी में शरीक हो। भाई खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, उसका बदन फिल हकीकत खाने की चीज है और उसका खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो उसके बदन में से खाता और उसके खून में से पीता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है। मसीह का बदन जो तेरे लिए तोड़ा गया, इसे ले और शुक्र करके खा। उसका खून जो तेरे लिए बहाया गया, इसे ले और शुक्र करके पी। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, इसको खा, उसकी मौत की यादगारी में शरीक। मेरी शिफा के लिए इसको खा, उसकी मौत की यादगारी में उठाई का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, मेरी शिफा के लिए कीमती जान लुटाई। मेरी शिफा के लिए कीमती जान लुटाई। मेरी वफा के दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए।
बरकत को ज़ाहिर करते हैं कि तूने अपने पाक बदन के वसीला से हमारी खताओं को माफ़ किया है और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करने के लिए बुलाया है। इसलिए खुदावन हमने नहीं बल्कि तूने हमें चुन लिया है ताकि हम दुनिया के साथ सजा ना पाएं। ऐ खुदावन, मैं इस बड़ी बरकत के लिए, फजल के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। अब खुदा इस बड़ी रस्म के लिए जिसका तूने हुक्म दिया और फरमाया मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ऐ खुदावंद, हम इस निजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं, ये निजात का प्याला जो तूने हमें दिया ताकि खुदावंद हम दुनिया में रहकर तेरी गवाही दें। और खुदावंद खुदा हमेशा की जिंदगी के लिए तूने बुलाया, इस बड़ी खिदमत के लिए जो तूने मेरे भाइयों को और मुझे दी कि तेरी मेज पर तेरी खिदमत करे। तेरा शुक्र करता हूँ और मिन्नत करता हूँ हम पर, हमारे खानदानों पर और कलीसियाओं पर रहम कर ताकि खुदावंद हम तेरी गवाही के लिए जिंदा रहें और बहुतों को तेरे पास लाने का सबब ठहरें। हाँ, हमें अपनी कुव्वत से भर दे, पाक रूह के मसा से भर दे। तेरा शुक्र करते हैं मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, दुआ रबानी और कलमात बरकत खुदावंद से हासिल करेंगे। हम सब मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। कलमात बरकत के लिए खुदा के बुजुर्ग खादिम से पास्टर नसीब साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं। जलाल बाप और बेटे रूह कुद्दस का जैसा ही पिता में आप रखूँगा हमेशा होगा। खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत, रफ़ाकत आप से लेकर हमेशा से हमेशा का फादर जमात दुनिया के कुल मुकस्सिर खास कर इन बच्चों के साथ जो कि खुदा ये तेरे खादम है, इन पर इनके घरानों पर खुदा तेरी कामिल बरकत मांग लेता हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आप शिफा किए। अगली अनाउंसमेंट्स के लिए मैं रजिस्ट्री साहब से दरख्वास्त करता हूँ। सर मेरा मसीह सब जगह तशरीफ रखे तो मामला आपको बरकत दे। मुझे एहसास है कि टाइम जो है आज काफ़ी आगे चला गया, लेकिन चलें खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज खुदा के पाक बदन उसके पाक खून के लिए जिसमें हम शरीक हुए हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप पहुँचे आज के दिन। मैं समझता हूँ कि क्योंकि रोज़ों के अयाम है और आप सब शाम को कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई मसरूफियात आप सबकी हैं। एक दफ़ा अपने लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां। इस वक्त से हम खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं, खुदावंद के जलाल के लिए, उसके नाम के लिए हम गा रहे हैं। तो अभी जो तालियां मैंने इसलिए बजाई क्योंकि आप काफ़ी देर से यहाँ बैठने वाले हैं। बेशक हम सारे ईमानदार हैं और खुदावंद से प्यार करने वाले हैं, हम सब खातम हैं। खुदा बरकत दे। सो आए चंद अनाउंसमेंट्स हैं, टाइम को मैं जानता हूँ कम वक्त है तो मैं इसको मुख्तसर ख़त्म करूँगा। ये किताब, ये बुक्स हैं दो, मुझसे मांग और एक यीशु के बारे में वो बुनियादी बातें जिन्हें आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये किताबें जिनके पास पहुँची ज़रा उठाइएगा, ज़रा इसको ज़रा ऐसे करें, एक तो ज़रा भाई तस्वीर बना ले और दूसरा मैं इस पर छोटी सी बात करूँगा। आप भी ज़रा आपने ज़रा प्लीज़, कोई नहीं पहुँची, चले आप उठाए। हाँ जी, खुदा बरकत दे। अच्छा जी, चले खुदा बरकत दे। मैं एक तो यीशु के बारे में बुनियादी बातें जिन्हें आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये किताब मज़ीद अगर आपको चाहिए हो तो आप ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा, पास्टर अलायंस से हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको जितनी किताबें ये चाहिए हो ज़रूर जो है हम आपको चर्च के लिए, हाँ जी हाँ चर्च के जिनको चाहिए हो तो आप ज़रूर आप हमें बता सकते हैं। जितनी बुक चाहिए हो आप बताइएगा, हम आपको जो है वो किताबें फराहम करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं बताता जाऊँ कि इन्हीं दिनों एक प्रोग्राम था, हमने पास्टर कह रहा हूँ, हाँ जी पास्टर कामरान मलिक साहब के चर्च में प्रोग्राम था, वहाँ पर मलिक आमर साहब मौजूद थे, स्कूल का प्रोग्राम था और ये किताब हमने मलिक आमर साहब को भी बतौर गिफ्ट जो है वो दी। और खुशी इस बात से हुई कि जब वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे थे और पास्टर नदीम साहब इसका ताल्लुक बता रहे थे तो मलिक साहब ने खुद कहा ये किताब मुझे भी पढ़ने के लिए चाहिए।
تو میں اس کی تصویر بھی بلکہ بھیجوں گا اور یہ بکس ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانی ہے تاکہ وہ بھی اس کو پڑھیں. آمین. اور یہ کتاب مجھ سے مانگ، اس کے لیے میں صرف تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ جب گھر میں ضرور اس کو پڑھیے گا. اس کا صفحہ نمبر 8 آپ نکالیں ذرا جلدی سے. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، اگر آپ کے پاس یہ پہلے کتاب نہیں آئی تو یہاں پر لکھا ہے، جہاں پہ یہ خالی جگہ ہے نا، یہاں پر آپ نے جن لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے ان کا ذکر کرنا ہے. جیسے اقبال ٹاؤن کا ہم کر لیتے ہیں. یہاں پر یہ لکھا ہے، اے آسمانی باپ، صفحہ نمبر 8 پہ ہے، اے آسمانی باپ میں بڑی دلیری اور بھروسے کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے پاس آتا اور اقبال ٹاؤن کے لوگوں کے لیے درخواست کرتا ہوں. خداوند تو نے مجھے ان کا نگہبان مقرر کیا، خواہ دن ہو یا رات میں کبھی خاموش نہیں بیٹھوں گا. خداوند میں تجھے مسلسل پکارتا رہوں گا جب تک کہ اقبال ٹاؤن کے لوگ ایمان نہیں لے آتے اور ان کے وسیلے زمین پر تیری تعریف نہیں ہوتی. تو یہ اس کتاب کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے. آپ اپنے چرچ کا نام اس میں ایڈ کر سکتے ہیں خالی جگہ پر، آپ علاقے کا نام ایڈ کر سکتے ہیں، جن لوگوں کے لیے آپ دعا کرنا چاہ رہے ہیں. تو پوری کتاب کو آپ اسی طرح سے استعمال کر سکیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. ایک تو یہ بکس کا ہو گیا. نیکسٹ میں دوسرا ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلا جاؤں کہ آنے والی جو ہماری پاسٹر الائنس انیشیٹو کی منتھلی میٹنگ ہے وہ پاسٹر لیاقت صاحب کے چرچ میں ہوگی اور ڈیٹ جو ہے وہ بہت جلد آپ کو اناؤنس کر دی جائے گی اور ٹائم جو ہے یہی شام میں ہی ہوگا، 6 سے لے کے 7:30 بجے کا وقت ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ بشپ صاحب نتموتی انیشیٹو کا بارے میں بتا رہے تھے، ڈسائپل میکنگ ڈسائپل، بشپ جوید الیاس صاحب. اور میں بتاتا چلا جاؤں جس ٹریننگ کی وہ بات کر رہے تھے، میں نے اور پاسٹر ذوالفقار نے وہ 4 دن ٹریننگ ہم دونوں بھائیوں نے کی اور ہم نے خود ٹریننگ کے دوران بڑی برکت پائی وہاں پر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی انہی دنوں میں ہم نے یہ سینٹر جو ہے یہاں پر شروع کر چکے ہیں، پاسٹر ذوالفقار بھی اور میں بھی، اور آلموسٹ تقریباً اسٹوڈنٹ مکمل ہیں. میرے پاس صرف 2 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میری پچھلی کلاس میں نہیں پہنچے، تو 2 اسٹوڈنٹس کی جگہ میرے پاس تو موجود ہے. تو اگر کوئی اپنا کوئی اسٹوڈنٹ دینا چاہے یا کوئی پاسٹر صاحب 2 سال کا یہ ڈپلوما کورس کرنا چاہے تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور پاسٹر ذوالفقار سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ کم ہیں کہ پورے ہو گئے ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بڑا زبردست چرچ پلانٹنگ کے تعلق سے یہ 2 سال کا ڈپلوما ہے اور یقیناً جو بھی اس کو ان کلاسز کو لے گا اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی چرچ کی گروتھ ہوگی اور کلیسیا میں اضافہ ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ آئزک ٹی وی کی گریٹنگز جو ہے آپ میں نے 5 سے 6 کہا تھا، کافی پاسٹر سے بات آ گئے اور ان کی گریٹنگز جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں. تو ابھی جو ہے وہ جانے سے پہلے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ گریٹنگز لازمی ریکارڈ کروائیے گا عید قیامت المسیح کے تعلق سے، تاکہ ایسٹر ڈے والے دن، عید قیامت المسیح والے دن آپ کی گریٹنگز جو ہے پوری دنیا میں لوگ دیکھیں اور ضرور آپ اس کی ریکارڈنگ کروائیے گا. اچھا، اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ یہ جو مئی کا مہینہ آ رہا ہے، 5واں مہینہ، اس کی 4 تاریخ کو پاسٹر الائنس کی طرف سے یوتھ کا جو ہے 1 روزہ کانفرنس کی جا رہی ہے اور آپ پاسٹر صاحبان سے گزارش ہے اس وقت تو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور آپ کو اس تاریخ سے پہلے ہم جو ہے وہ پوسٹر بھی جو ہے وہ شیئر کریں گے اور آپ سے رابطے میں رہیں گے. اور ضرور اپنی یوتھ کو اس کانفرنس میں بھیجیے گا تاکہ یوتھ جو ہے وہ اسپرچولی جو ہے وہ آگے بڑھے اور پادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کلیسیا کو مضبوط کرے اور خدمت کا کام مزید بڑھ سکے. آمین. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. اور مزید اگر کوئی اناؤنسمنٹ کسی پادری صاحب کی تو آپ بتا سکتے ہیں، نہیں تو پھر میرا تو آلموسٹ تقریباً یہی اناؤنسمنٹ تھی. کوئی ٹھیک ہے جی، ابھی جو سب مجھے چاہیے روٹیاں تازی تازی آ رہی میری آخری بات کے بعد آپ گروپ فوٹو کریں گے اور یہ جگہ کم پڑے گی، ہم تھوڑا سا اس جگہ کو ڈیسائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، بری لگے پچھڑ تو معافی جی تو گھٹ سمجھ لو اپنے آپ یا ود سمجھ لو تو پھر سیدھے راستے پاس تو کسی کو نہیں جا سکتے. پر سمجھو جی، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات اس کے بغیر کرنا چاہیے. گزارش یہ ہے، ہم اگر بنیادی رکاوٹوں پر بنیادی باتوں پہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہی جو ہم سے پہلے کرتے آئے ہیں وہ بھی آئے گئے، کچھ نہیں ہوا. کیا انقلاب آیا پاکستان کے اندر؟ میں چرچ آف پاکستان کی اگر بہت جگہوں پہ بیٹا آف کر دو اسے ذرا